कहते हैं कुछ लम्हे वहीं छूट जाते हैं, कहते हैं कुछ लम्हे वहीं थम जाते हैं, कहते हैं कुछ लम्हे यादों में रह जाते हैं। ये वो लम्हे हैं जो आप अपने कॉलेज और अपने स्कूल में बिताते हैं। हर रोज की वो मस्ती, हर रोज का वो मजा, हर रोज की वो डांट, हर रोज का वो नशा वहीं थम जाता है जहां वो था, वहीं थम जाता है जहां वो था, वहीं छूट जाता है जहां वो था। मस्ती के लम्हे इनकी जिंदगी में भी खत्म हो चुके थे। दिन आ गए थे जब उन्हें अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू देने थे, जिंदगी का पहला इंटरव्यू। तो आइए जानते हैं कैसे गए इनके इंटरव्यूज, कैसे थे सवाल, कैसे थे एक्सपीरियंसेस, कौन गया विदेश, कौन गया हिंदुस्तान। यार मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे 50,000 रुपए डूब गए। अभी आप पूछोगे कैसे हुआ, तो यार जवाब बहुत ही सिंपल है। मैंने कॉलेज को यूएसए जाने के लिए पैसे दिए थे, साला पता चला कॉलेज ही बैन हो गया, 50,000 रुपए भी डूब गए। ये क्या ही बकचोदी हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो यार। Hello Prajakta, how are you? My name is Junjunwala. I am the executive director, HR of Taj Hotels. How are you? I'm absolutely fine, sir. How are you? I'm absolutely fine. Come on, tell me something about yourself. Come on, tell me. I want to know. Sure, sir. My name is Prajakta. I have completed my education from St. Xavier's Senior Secondary Co-ed School, Madhya Pradesh, Bhopal. I'm currently pursuing my BSc from XYZ College, and my hobbies are playing guitar, singing, dancing, etc. And apart from this, my extracurricular skills are dancing. I have already represented my school on the national level in dancing competitions. Thank you, sir. Very good, Prajakta. I love you, Prajakta, for this. Really. हाँ। वैसे भी लड़कियों को तो ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। This is the myth. ऐसा कुछ भी नहीं होता। Even girls have to work hard in this industry. Equal hours of working. It's really hard. But still, I believe you will be able to do this. I have a firm belief on you. Girls also have to go through same pain which boys have to. So definitely, you will be working hard. I'm quite sure about it. And more about interview. People need to understand that there should be a good command over language. Because in the first ever interview of your life, I cannot judge you on the base of your knowledge. Because I also know you are in the college. You're still gaining knowledge. And you're getting into my company to gain more and more knowledge. So definitely, knowledge cannot be the criteria, the main criteria for selection. The main criteria for selection in industrial training is mostly your language, your looks, your personality. Looks are not told by the company, but some of back of the mind I know कि सुंदर सुंदर कन्याएं लेनी है। अच्छी कन्याएं होंगी तो कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बनेगी। This is the normal thinking. We cannot help human tendency end of the day. You see. But definitely, few companies say it openly. Few companies do not say it openly. But this is there. So, you need to work on your personality. Every day. You need to be well merged in your English also. This is the truth, Prajakta. Very few people know about this. ज़्यादा लंबा हो गया ना? तो इंटरव्यूज सबके खत्म हो चुके थे। नॉर्मली पूछे जाने वाले सवाल यही थे, अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी हॉबीज क्या हैं, और कुछ छोटे मोटे टेक्निकल सवाल जैसे कि किसी प्लेट का नाम, तो किसी रेसिपी का नाम, तो या फिर मदर सॉसेस का नाम। इससे ज्यादा टेक्निकल्स तो कभी किसी से पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, लोगों के इंटरव्यू खत्म हो चुके थे, पर एक भाई साहब अभी भी परेशान थे क्योंकि भैया को विदेश जाना था। विदेश का कीड़ा उन्हें ऐसा चढ़ गया था कि उन्होंने प्राजक्ता को कॉल कर लिया। प्राजक्ता ने भी हमारे आशीष भाई की थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। अब आप सोच रहे होंगे बाकी लोगों का क्या हुआ, कैरी भाई का क्या हुआ? तो कैरी भाई अपने कॉलेज से ही परेशान थे, उन्हें भी फाइनली
मतलब इंटर्नशिप मिल ही गई थी और वो दिल्ली आ रहे थे। अरे मोहित भाई सिलेक्शन हो गई भाई, दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली। अरे साली इस जगह से तो जल्द से जल्द जाना है भाई, ठंडी में पानी जम जाता है यार। पिछवाड़ा नहीं धोया 1 महीने से कसम से भाई। भाई दिल्ली जा रहा हूँ और वहां जाके बढ़िया टिकटॉक वीडियो बनाऊंगा भाई, बढ़िया मस्त भाई। राष्ट्रपति भवन के सामने जाके टिकटॉक वीडियो बनाऊंगा अब मैं। और हाँ, वो अपना गाना भी तो आ रहा है भाई, उसको भी तो देखना है कि नहीं? चलो नाचे। जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मेरे घर ही। अरे यार प्राजू, दिमाग का दही कर दिया इन लोगों ने, हद करके रख दिया यार। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तो मेरे 50,000 रुपए डूब गए और मुझे अब फॉरेन जाना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ बेचते हैं वहां बेचते हैं, कहीं भी नहीं बेच पा रहे यार। क्या यार, तू भी कितना पागल है। तुझे फॉरेन जाना ही क्यों है? इंडिया वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आती है और फॉरेन जाने से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि चीजें बदल जाएंगी। तू फिर भी वही का वही आशीष रहेगा। और यार इंडिया में 12-12 घंटे काम करके तू दुनिया में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहेगा, पर वहाँ 8 घंटे की काम करके तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वहाँ जाने से तुम्हें नौकरी फॉरेन में मिल जाएगी। अरे ऐसा नहीं होता यार, बहुत एक्सेप्शनली ऐसा होता है। और वैसे भी कॉलेजेस इंटरनेशनल प्लेसमेंट देते ही नहीं है। ये कॉलेजेस हमसे आधी बात बोलते हैं, पूरा सच नहीं बोलते। वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी है, पर वो कभी ये नहीं बताते कि ये गिने चुने 1-2 बच्चों के लिए होती है। सिर्फ पूरे 1000 बच्चों में सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही फॉरेन में सेलेक्ट होते हैं। वो भी कैसे? क्योंकि वो खुद फॉरेन जाते हैं अपनी ट्रेनिंग पे और अपना जुगाड़ खुद बैठाते हैं, और फिर कॉलेज क्या देता है, ओहो हमने प्लेस कर दिया। यार मुझे लगता है इस मैटर पे तुझे अपने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, वही तेरी हेल्प कर सकते हैं। जा और अपने प्रिंसिपल से बात कर। Hello, Mr. Ashish Shinchilani. How can I help you? Did he pay the fees, accountant? No? Hey, Ashish. Ashish, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তুমি ফিস ভরবে, তারপরে আমি তোমার সাথে বাত করব। তুমি ফিস ভরবো না, আমি তোমার সাথে বাত করব না, ঠিক আছে? তুমি বুঝতে পারে আশিস? তুমি বুঝতে পারছি না, আমি তোমায় হেল্প করবো না বাড়া। আমি पैसा सबसे जरूरी मामा मिया, पैसा पैसा, हमें पैसा चाहिए रे बाबा, पैसा ही चाहिए रे बाबा। सिर्फ तू पैसा भेजो, हम तुम्हारा हेल्प करेगा। देखिए सर, मेरा ना दिमाग बहुत खराब हो रहा है, ठीक है? पैसा तो हम भर देंगे, उसकी कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। मैंने यूएस से जाना था, यूएस में आप लोग बैन हो गए, क्या ही कांड करते रहते हो। 2 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड कर दिया आपने, हद करते हो जी। सारा केस पता है मैं, एक रोस्ट वीडियो ला रहे हैं हम कैरी के स्टाइल में, पूरा एक्सपोज करके रख देंगे आपको, देख लीजिएगा आप। फिर बोलिएगा नहीं हमने वार्निंग नहीं दी, बता रहे हैं आपको। तुम्हें पता नहीं है हमारे पास भाड़े के टट्टू हैं, हाँ वो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे, गू कर देंगे वहां पे जाके, बता रहा हूं मैं, क्योंकि टट्टी करना उनका काम है, कहीं भी जाके कर देते हैं। पर फिर भी तुम मेरे कॉलेज के बहुत ही अनहोनहार बच्चे हो, साले चूती हो तुम, निशब्द चूती है। पर फिर भी तुम्हें फॉरेन भेजेंगे हम, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। अबे लूटना भी तो जरूरी है, तुम्हें लूटना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? तुम एक काम करो, 4 लाख रुपए फिर से रख दो, हम फिर से तुम्हें लूट लेंगे और इस बार तुमको पाकिस्तान भेज देते हैं, बेस्ट फॉरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। अरे वहां पे तुम होटल मैनेजमेंट के साथ बंदूकें चलाना भी सीख जाओगे, वापस आओगे तो बंदूकों का टैलेंट अपने साथ लाओगे। पर यार रिस्क है, बंदूकों का टैलेंट लेके आए तुम तो साला मुझे ही शूट कर दोगे। ना 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 ना, तुम्हें हम ढाका भेज देते हैं, बांग्लादेश, वो भी तो फॉरेन कंट्री है भाई। हाँ, उसको तुम छोटी मोटी कंट्री समझो, बांग्लादेशी हैं वो लोग। चलो ठीक है यार, ऐसी नजरों से नहीं देखो, तुमको हम बेहतरीन फॉरेन कंट्री भेज देते हैं जहां पे बर्फ ही बर्फ होगा, बहुत ऊंचे, कोहरा ही कोहरा। बट उस कंट्री का नाम है नेपाल। तुम नेपाल चले जाओ, सबसे बढ़िया है, बेहतरीन नौकरियां हैं यार, नेपाल से बढ़िया कोई कंट्री नहीं है। मैं वैसे सोच तो रहा था तुम्हें चाइना भेज दूं, अरे यार चमगादड़ तुम खा नहीं पाओगे, शक्ल से नहीं लगता है, क्योंकि खुद ही चमगादड़ जैसे दिखते हो। कोई नहीं,
तुम्हें हम जहां लूट पाएंगे वहां जरूर भेज देंगे। हाँ, क्या बात है, मॉरिशस भेज देते हैं, बहुत अच्छी लूट है वहां पे। एक काम करो, लगते वैसे 50,000 हैं आने के लिए, पर तुम 4.5 लाख रुपए भर दो, क्योंकि 4 लाख मेरा फायदा होना चाहिए ना यार। तो भर दो, जल्दी भर दो पैसे। अरे पैसे भरो यार, मतलब नहीं है बाकी चीजों से, तुम बस पैसे भर दो, बाकी हम तुमको लूट लेंगे, दिक्कत नहीं है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको